record. Hello everyone. Now in this video we will discuss about the logical operator, that is OR and NOT. There are three basic logic operators. These are OR and NOT. Now firstly, before starting it, we must have to aware about the truth value testing. That in which case the value will be true or the value will be false. Now suppose you are writing none. In that case, that will return you false. False will return false. Similarly, 0, 0.0 or any complex number that is 0 j, that is also give you the false value. And in case of the empty sequence, either it is a string or it is a tuple or it is a list. Now here in all of these cases it will return the false value. Except all of these, the others will be have a true value. आपका इसके अंदर ट्रूथ वैल्यू में क्या होगा, हमें टेस्टिंग करनी है. हमारे लॉजिकल ऑपरेटर है 3 और एंड नॉट. उस केस के अंदर आपने इन वैल्यूज को ध्यान रखना है. इस केस में आपकी ट्रूथ वैल्यू फॉल्स होगी. सो इस केस में आपकी ट्रूथ वैल्यू फॉल्स होगी. ठीक है, अब हम इसको एक बार रन करके देख लेते हैं कि नन फॉल्स. इसकी किसी भी बूलियन वैल्यू चेक करनी है, देन व्हिच फंक्शन वी हैव टू यूज, दैट इज bool. bool. Now suppose you are writing none and is a keyword, and if you want to see that what is the output for this function, now you may see it here, it is false. Similarly, if you are taking 0, 0.0 or 0g, that is a complex number, and similarly if you are taking the empty list, I'm just showing you all the cases, or you are taking the empty tuple, okay, or you are taking empty dictionary, and if you are writing a false, in all of these cases you will see that the output will be false. You can see in all the cases the output will be false, except these cases in other points it will become true. अगर इनको छोड़ देंगे आपको इसके अंदर फॉल्स आएगी और ट्रू है. क्योंकि लॉजिकल करने से पहले हमें इस चीज का पता होना चाहिए कि किस पार्ट को हम फॉल्स कहते हैं और किसे ट्रू कहते हैं. ओके, देन नाउ we are taking the firstly we are doing operation on OR operator. OR operator, in case of the OR operator, we have there is a minimum at least 2 inputs are required, and if any one of the input is true, then output will be true. If you are giving the 2 inputs and if any one of the input is true, then output will be true. That is the logical taper. Okay, now we will check that how will we use this operator into our Python. Now let's check it. Yeah, you can take this example. Firstly, I am taking this example for understanding about the OR operator. If this OR operator will be clear to you, then easily you can understand the other operators also. सारे ऑपरेटर एक दूसरे से मिलते हैं, बस आपकी जो आउटपुट है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, अदरवाइज लॉजिक सेम है. तो आपको ये क्लियर हो जाता है. नाउ फर्स्ट चेक, हम पहले इक्वालिटी ऑपरेटर कर चुके हैं अपने पिछले ऑपरेशन में. नाउ 4 इज इक्वल टू 4, ये वैल्यू हमारी ट्रू है तो इसका मतलब इसका आउटपुट आने वाली है ट्रू. और 5 इज इक्वल टू 8, ये ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है तो इसका आंसर है फॉल्स. दैट मीन्स ट्रू और फॉल्स. तो ट्रू और फॉल्स आपको फर्स्ट चेक करना है. अगर ये ट्रू है तो आपकी ये सेकंड वैल्यू पे नहीं जाएगा. ध्यान रखिएगा, अगर ये केस ट्रू है तो आपका सेकंड चेक नहीं करता. अगर ये फॉल्स है तो सेकंड वैल्यू में जो भी आंसर होता है वो आपके आंसर में आउटपुट में आ जाता है. यही चीज है हमारी कंसेप्ट क्लियर करने के लिए. ध्यान से फिर सुनिएगा. अगर हमें कोई भी कंडीशन है जिसमें हमें और लॉजिकल ऑपरेटर को चेक करना है, तो सबसे पहले आप हमेशा फर्स्ट को चेक करेंगे.
दिस इज योर फर्स्ट पार्ट, और ये फर्स्ट पार्ट हमारा ट्रू है, ट्रू, ठीक है, क्योंकि 4 के इक्वल है, ये ट्रू है। अगर ये केस ट्रू है तो और के ऑप्शन में, और ऑप्शन में आप सेकंड केस पे नहीं जाएंगे, आपका यही आंसर में आ जाएगा, दैट मीन्स ट्रू और लिव इट, देन इट विल बी गिव यू ट्रू। नाउ लेट्स चेक इट। And last case you can see that it is giving us a true, but if you are taking, in your first case if you are taking false, so I am in this case in your first option, and so I am writing it here, this one. I have taken the two condition. In this case, you can see that the first condition is true. Now, first condition is false. Now it will move to the second case. Okay, then I am taking it true. So that the difference will be there. Now in that second case, you can see that these are true. Now, if the first condition is false, then it will move to the second case to check whether it is true or false. अगर आपका पहले केस में कोई गलत है, ट्रू फॉल्स आता है, तो उस केस में ये सेकंड पे जाएगा, अदरवाइज ये नहीं जाएगा। और के केस में आपको सिर्फ फर्स्ट को चेक करना होता है, ये आपका फर्स्ट पार्ट है, ये आपका क्या है, फॉल्स, तो नॉट दैट चेक इट, नाउ इट विल गिव अस द ट्रू अगेन। तो हमारा फर्स्ट केस देखा इसमें फॉल्स, अगर ये फॉल्स है तो ये सेकंड पार्ट पे जाएगा विच इज ट्रू, तो ये आपका ट्रू हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अब हम आते हैं एंड के साथ। एंड ऑपरेशन के लिए हमें सबसे पहले एंड ऑपरेशन में हमें, या पहले हम और ऑपरेशन का ही वैल्यूज के लिए भी कर देते हैं, ये तो हमारा था एक्सप्रेशंस के लिए। इफ द टू एक्सप्रेशंस आर गिवन टू, अभी हमने ऊपर ये चीजें पढ़ी थी वैल्यूज के लिए थी, अगर हम इस वैल्यूज के बीच में और ऑपरेटर को लेकर कंपैरिजन करते हैं, देन व्हाट विल बी देयर। नाउ आई एम जस्ट रिमूविंग ऑल द केसेस हियर, range suppose 5 or 8, okay, now what will be the output। आपको पता है कि अभी मैंने क्या बताया था, 5 केस, 0 ब्लैंक लिस्ट, तो ब्लैंक कोई भी सीक्वेंस है, नन, फॉल्स, ये हमें फॉल्स देते हैं, इसके अलावा जो भी वैल्यू होगी वो आपकी क्या होगी, ट्रू। तो जो ये 5 है, ये न्यूमेरिक वैल्यू हमें क्या देगी आपको, ट्रू। इसका अगर बूलियन वैल्यू चेक करें तो हमें ट्रू देता है, ठीक है। अगर अभी हमने क्या कहा था, अगर फर्स्ट केस हमारा ट्रू हो जाए और के केस में कोई भी एक केस ट्रू हो तो हम वहीं पे रुक जाते हैं। तो अगर ये फर्स्ट केस ट्रू है तो आपको सेकंड केस पे नहीं जाना, इस केस पे नहीं जाना, दैट मीन्स आपका फर्स्ट केस ही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपको देखना आंसर पे क्या देगा, 5, चेक इट इज 5। बट अगर फर्स्ट केस फॉल्स हो जाए, हम मान लेते हैं हमने इसको 0 रख दिया और हमें मालूम है 0 फॉल्स होता है, या नन रख दिया, नन भी आपको पता है फॉल्स होता है, या हमने ब्लैक लिस्ट रख दी, ब्लैंक लिस्ट आपकी ये भी फॉल्स होती है। तो अगर हमने किसी भी केस फॉल्स केस को आगे रख दिया तो ये कहाँ मूव करेगा, सेकंड की तरफ, तो ये सेकंड पार्ट पे जाएगा और आपका सेकंड पार्ट जो भी पड़ा है, चाहे वो ट्रू है चाहे फॉल्स है, वो आपके आंसर में आ जाएगा। ये वैल्यू का केस है, ठीक है। तो अब ये देखिए आपको आंसर में 8 आ, अगर मैं यहाँ पे पहला फॉल्स रखते हुए यहाँ पे अगर दूसरा केस भी फॉल्स कर देता हूँ, मान लीजिए एम्प्टी मैंने सेट कर दिया डिक्शनरी भी, तो इस केस में आपका जो सेकंड पार्ट है दैट विल बी योर आंसर, तो ये आपका सेकंड पार्ट आंसर में आ गया, ठीक है। और केस के अंदर मतलब क्या है, अगर आप और ऑपरेटर यूज कर रहे हैं तो सबसे पहले आपका मेन रोल रहता है आपको फर्स्ट पार्ट को चेक करना। अगर फर्स्ट पार्ट ट्रू है तो आप सेकंड पार्ट को आंसर में नहीं देते, आपका जो फर्स्ट पार्ट है वो ही आपका आंसर आ जाता है, ठीक है। एक्सप्रेशन के केस में आंसर ट्रू फॉल्स में आता है, लेकिन अगर वैल्यू होगी तो आपको आंसर वैल्यू में आता है। जैसे अगर आप यहाँ पे वैल्यू कुछ भी लिख दीजिए, 23 कुछ भी लिख दीजिए, क्योंकि आपको मालूम है 0 फॉल्स होता है, लेकिन 23 क्या होगा, ट्रू, तो आपका आंसर क्या आने वाला है, 23, ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो ये है हमारा दोनों केसेस में, अगर या तो आप एक्सप्रेशन में कंपैरिजन कर रहे हैं या न्यूमेरिकली में। लेकिन अगर मान लो आप एक्सप्रेशन आप दोनों में कर रहे हैं, सपोज कीजिए इस बार हम पहले में वैल्यू रख लेते हैं और सेकंड में हमने ये कंडीशन डाल दी, ये वाली, ओके, मैंने ये कंडीशन डाल दी। अब आपके अकॉर्डिंग देखिए, फर्स्ट केस क्या, ट्रू, पहली वैल्यू ट्रू है, तो ये सेकंड पे जाएगा ही नहीं चेक करने, आपको यही आंसर में दे देगा, ये देखिए
अगेन 23 इज डाउन। लेकिन अब अगर मैं मान लो फर्स्ट केस में 0 डाल देता हूँ, अब क्या करेगा, 0 फॉल्स होता है, तो फॉल्स होने के कारण ये सेकंड केस में जो भी आपका आंसर होगा वो आपको आंसर में दिखेगा, लेकिन ये एक्सप्रेशन है, ये वैल्यू नहीं है। अगर ये वैल्यू होती तो आपको आउटपुट में वैल्यू आ जाती। अगर ये एक्सप्रेशन है तो इसका रिजल्ट क्या होता है, 5025 दैट इज ट्रू, तो ये आपको आंसर में ट्रू देगा, ये आपको आंसर ट्रू देगा। लेकिन अगर ये वैल्यू होती, मान लेते हैं हम ये वैल्यू लिख देते हैं, एक्सप्रेशन ना लिख के हमने एक वैल्यू लिखी, मैं ब्रैकेट में जान के लिख रहा हूँ और ये आपको चेक हो जाएगा, ये देखिए ये आपको 55, अगर आप ब्रैकेट नहीं भी लिखते तो भी आपका काम हो जाएगा, क्योंकि इस केस में ये सेकंड क्या होगा, वैल्यू। अब दोनों वैल्यू में, अब वैल्यू के केस में अगर पहली फॉल्स हो जाती है तो ये सेकंड वैल्यू जो भी होगी आपकी वो आपके आंसर में आ जाएगी, और अगर पहली वैल्यू ट्रू हो जाती है तो जो पहली वैल्यू है वही आपके आंसर में आएगी। सिमिलरली एक्सप्रेशन के केस में इफ द फर्स्ट एक्सप्रेशन इज ट्रू, अगर आपकी पहली एक्सप्रेशन ट्रू है तो ये सेकंड एक्सप्रेशन को चेक नहीं करता, ये आपकी फर्स्ट एक्सप्रेशन का रिजल्ट यहाँ पर डिस्प्ले कर देगा ट्रू। और सिमिलरली अगर एक आपकी एक्सप्रेशन है, एक वैल्यू है, तो वैसे ही होगा, फर्स्ट आपको एक्सप्रेशन या वैल्यू जो भी है उसको चेक करेगा, अगर ये ट्रू है तो ओके, इसी को आंसर में लेके आएगा, अदरवाइज ये जो भी और के बाद लिखा होगा उसके रिजल्ट को आंसर में ले आएगा। ओके, आई थिंक और ऑपरेटर इज क्लियर टू यू, क्योंकि एंड ऑपरेटर बिल्कुल सेम इसी के तरीके से है, सिर्फ उसका ट्रुथ टेबल जो है वो डिफरेंट है। ओके देन नाउ वी आर मूविंग टू अवर एंड ऑपरेटर। ये हमने अभी किया है, यहाँ पे हमने इसमें और ऑपरेटर की टेबल की थी, और ऑपरेटर में इफ एनी वन ऑफ द कंडीशन इज ट्रू, देखिए दोनों में फॉल्स था तो इसका आउटपुट फॉल्स, अगर दोनों में ट्रू, एक भी ट्रू आ जाता है तो आपका आंसर ट्रू में आता है। ये हमने और के अंदर किया था। अब सेम चीज हम कर रहे हैं एंड के। नाउ द सेकंड ऑपरेटर इज एंड। अब एंड ऑपरेटर भी थोड़ा सा डिफरेंस है कि एंड ऑपरेटर के केस में क्या, अगर कोई भी एक वैल्यू फॉल्स है, इसके बाद हमने ट्रू को कहा, अब इसमें क्या होगा, अगर कोई भी एक वैल्यू फॉल्स है देन आउटपुट विल बी फॉल्स, दैट मींस इफ एनी वन ऑफ द इनपुट इज फॉल्स देन द आउटपुट विल बी फॉल्स। अब हम इस आउटपुट के केस में अब हम इसको चेक करेंगे, चेक करने का पैटर्न आपका वही रहेगा सेम। सपोज मैं इस केस को और की जगह एंड लिख देता हूँ, अब आपका क्या होगा, फर्स्ट वैल्यू क्या आपके पास फॉल्स है, अगर फर्स्ट केस फॉल्स है तो ये अगली वाली वैल्यू को आंसर में नहीं लेगा, क्योंकि आपको मालूम है कि फॉल्स है तो फॉल्स एंड फॉल्स दैट इज फॉल्स, फॉल्स एंड ट्रू दैट इज फॉल्स, तो अगेन दैट मींस आपका फर्स्ट केस ही आपका आंसर हो जाएगा। अगर अब मैं इसको आंसर को रन करता हूँ, ये देखिए आपके आउटपुट में 0 आ गया, क्योंकि पहली वैल्यू फॉल्स थी। लेकिन अगर पहली वैल्यू ट्रू हो जाती है, ये और से उल्टा है बिल्कुल, लेकिन लॉजिक वही है, अगर 12 के अंदर आपकी वैल्यू ट्रू हो गई, ये भी ट्रू है, तो अब ये ट्रू है तो ये सेकंड वैल्यू को चेक करने जाएगा, यानी ऐड के केस में ये जो सेकंड वैल्यू है ये आपका आंसर होगा, तो यानी ये ट्रू है तो ये आपको आंसर में क्या देगा 55, ये देखिए आपको इसने 55 दे दिया, ठीक है। अगर मान लेते हैं हम सेकंड को फॉल्स रखते हैं तो भी ये वो 0 देगा आपको, जो भी सेकंड केस होगा वो आपको आंसर में डालता रहेगा, चाहे आप यहाँ कोई भी लिस्ट लिख लीजिए 1 1 2, जो भी आपकी आउटपुट होगी सेकंड केस में आपकी वो आउटपुट आंसर में आएगी, अगर आपका पहला केस ट्रू है। लेकिन अगर पहला केस फॉल्स हो जाता है, मान लेता हूँ मैं यहाँ एम्प्टी लिस्ट डाल देता हूँ, ये आपको पता ही क्या है फॉल्स, तो फॉल्स के केस में क्या होगा, ये सेकंड को चेक नहीं करेगा, ये सीधा आपको फर्स्ट में देगा, फॉल्स करेगा फिर चेक करेगा ये एंड ऑपरेटर है, ओके एंड है तो ये सेकंड केस में नहीं जाएगा, आपको सीधा आपको ये आंसर में आ गया। अब आप ये देखिएगा ये आपको आंसर देगा, ठीक है। अब ये कई बार कंफ्यूजन हो जाती है कि अगर सर ये फॉल्स है तो सेकंड वाली पे क्यों नहीं गया, ये हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं नंबर्स के थ्रू। मैं लेता हूँ 20 और यहाँ लेते हैं 20, दोनों वैल्यू ट्रू है, तो आपके आंसर के अकॉर्डिंग आपके ट्रू एंड ट्रू दैट इज ट्रू, तो उस केस में ये आपको क्या करता है, बाद वाली वैल्यू उठाएगा, क्योंकि पहली वैल्यू ट्रू मिलते ही ये चेक करने जाता है सेकंड वैल्यू को, ये फॉल्स तो नहीं है, अगर ये फॉल्स है तो उस केस के अंदर क्या करेगा आपको, ये फॉल्स यानी आपका सेकंड केस आ गया, यानी आपको हर हालत अगर ये ट्रू है तब भी आपका सेकंड केस आ गया, यानी अगर फर्स्ट केस आपका ट्रू है तो ये हर केस में आपको सेकंड वैल्यू देगा। लेकिन और के अंदर ऐसा नहीं होता, और में अगर फर्स्ट वैल्यू ट्रू है तो आपकी फर्स्ट वैल्यू भी आंसर में आ जाती है, ठीक है। और इसको एक बार चेक करिएगा, 20 एंड 23 आउटपुट क्या आना चाहिए आपका 23, ये देखिए आपका आउटपुट आ गया 20, ये है हमारा एंड ऑपरेटर। सेम वही एक्सप्रेशन बेस्ड 4 इज इक्वल टू 4
करेंगे दैट इज ट्रू, एंड सेकंड वैल्यू में आपने लिख दिया 5 इज ग्रेटर देन 9, ये फॉल्स है। तो अब देखिए आपका आंसर क्या आना चाहिए, क्योंकि एक्सप्रेशन है तो आपके एक्सप्रेशंस को ये चेक करेगा। फर्स्ट इट विल चेक दिस एक्सप्रेशन, you have to put it into this bracket. It is your first expression on the left side of AND operator, and it's your second expression on the right side of your AND operator. Now first it will check the left side expression, आपकी पहले ही लेफ्ट साइड वाली एक्सप्रेशन को चेक करेगा। नाउ 4 इज इक्वल टू 4, दैट इज ट्रू। अब ये ट्रू है, और हमने क्या कहा था, अगर एंड के केस में फर्स्ट केस ट्रू हो जाए तो ये सेकंड वाले के रिजल्ट को आपके आंसर में देता है, ठीक है। तो अब हमारे पास ये ट्रू हो गया, तो इसका मतलब आपका सेकंड केस क्या है, 5 इज ग्रेटर देन 9, और जो कि क्या होता है, फॉल्स। तो इसलिए आपका आंसर में क्या आने वाला है, फॉल्स। ठीक, अगर मैं इसको प्रूव कर देता हूँ, तो ये आपको ट्रू दे देगा। मैंने वैल्यू प्रूव कर दी कि 5 इज नॉट इक्वल टू 9, तो ये मेरा ट्रू है। पहला फॉल्स, पहला ट्रू था, तो ट्रू एंड ट्रू दैट इज ट्रू, तो देयरफॉर आपको सेकंड वैल्यू आपको आंसर में आ गई। चलिए एक्सप्रेशन को उठाते हैं, यहाँ कोई वैल्यू लिख देते हैं, सपोज 25। अब आपके आंसर में 25 आएगा, यानी अगर फर्स्ट वैल्यू ट्रू हो गई तो आपके सेकंड की वैल्यू को लेगा। लेकिन अगर मान लेते हैं कि फर्स्ट वैल्यू को हम फॉल्स कर देते हैं, तो अब ये सेकंड वैल्यू चेक नहीं करेगा, ये सीधा फर्स्ट वैल्यू को ही आपके आंसर में दे देगा। ये देखिए फॉल्स आएगा, ठीक है। तो ये है हमारा एंड ऑपरेटर। तीसरा आता है हमारे पास नॉट ऑपरेटर। अब इस पे देखिएगा, ये एंड ऑपरेटर था, आपका नंबर्स और एक्सप्रेशन के बीच में कंपैरिजन होगा। चलिए एक बार कुछ यहाँ से भी देख लेते हैं, 0 एंड 0 दैट विल रिटर्न 0 बिकॉज फर्स्ट इज फॉल्स, तो ये फर्स्ट वाला 0 आपको आउटपुट में दी गया। इधर भी 0 एंड 0 फर्स्ट केस इज फॉल्स, तो देयरफॉर आपको आउटपुट में 0 दे गया। 5 एंड पहला केस ट्रू था, तो इसलिए ये आपको सेकंड केस आपके आउटपुट में आ गया। इस केस में स्ट्रिंग के केस में अगर आपने कुछ लिखा हुआ है तो वो ट्रू मानी जाती है, एम्प्टी स्ट्रिंग फॉल्स है, तो यानी ये केस आपका क्या हो गया, ट्रू एंड रिटर्न्स, ये भी क्या हो गया, ट्रू। तो इस केस के अंदर आपके पास क्या हो जाएगा, ये केस ट्रू हो गया, तो ये सेकंड केस को चेक करेगा, रिटर्न्स, तो आपके आंसर में ये रिटर्न्स आ जाएगा। ठीक है, जैसे नीचे देखिए यहाँ पे लिखा नहीं हुआ तो मैं इसको लिख देता हूँ, दैट विल रिटर्न रिटर्न्स। okay okay, that will return returns. If you are writing it in a, actually that is the empty string। मान लीजिए आपके पास ये केस है, वो एक्चुअली एम्प्टी स्ट्रिंग थी, तो आपके पास मान लीजिए ये केस मैंने दे दिया, तो इस केस में आपको आंसर रिटर्न्स ये आने वाला है। चलिए चेक करते हैं। और आपको पता है कि किसी भी स्ट्रिंग को हम आइदर वी कैन राइट इट इन अ सिंगल कोट्स और इन अ सिंगल डबल कोट्स, सो I'm writing it here। Okay, now it's your first case and it's your second, but all of these are the values। okay, these are the values, and it's a case sensitive, so you will have to write in a small letter। now just run it, रिटर्न्स, तो ये आपका आउटपुट में रिटर्न्स आएंगे बाद वाला, क्योंकि पहली स्ट्रिंग आपकी क्या ट्रू, अगर ट्रू है तो ये सेकंड वाली स्ट्रिंग को रिटर्न करेगा, तो आपकी सेकंड स्ट्रिंग आउटपुट में आ गई। ओके, नाउ नोट, लास्ट थर्ड ऑपरेटर है, दैट इज नोट ऑपरेटर। नोट ऑपरेटर मींस इट विल जस्ट invert the answer, if your answer is true then it will false, and if it is false then it is true, जैसे नोट 5। लेकिन इस केस में आपका आंसर हमेशा ट्रू या फॉल्स में निकलता है, वैल्यू में नहीं निकलता। जैसे अब मान लो ये वैल्यू में आया था, अगर मैं इसी को सारी चीज को ब्रैकेट में बाहर की तरफ नोट कर देता हूं, नोट बेस एंड दिस, ओके। अब इसका अंदर वाले का रिजल्ट क्या था, अभी हमने देखा था रिटर्न्स, ठीक है। लेकिन अब ये रिटर्न्स नहीं देगा, क्योंकि आपको पता पहली वैल्यू क्या है, ट्रू, और दूसरी वैल्यू भी क्या है, ट्रू। तो ट्रू एंड ट्रू क्या होता है, ट्रू, बोथ आर ट्रू देन इट विल बी ट्रू। एंड नोट का मतलब हुआ ये आपके आंसर को उल्टा कर दिया। आपका आंसर क्या था, ट्रू, तो ट्रू का रिवर्स क्या हुआ, दैट इज फॉल्स।
तो आपका आंसर क्या आएगा, फॉल्स। ना हेलो ना रिटर्न्स, ये देगा आपको आंसर में फॉल्स, क्योंकि नोट हमेशा आंसर आपको किस में रिटर्न करता है, तो ट्रू में या फॉल्स में। अगर आपकी फर्स्ट स्ट्रिंग ट्रू है तो ये चेक करता है कि सेकंड स्ट्रिंग के लिए, ठीक है, तो सेकंड स्ट्रिंग भी ट्रू है तो ट्रू एंड ट्रू दैट विल बी ट्रू, तो इस केस में क्या देगा, ओके, दैट मीन यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, फॉल्स। नोट क्या करेगा, आपके रिजल्ट को उल्टा कर देगा, ओके। दैट इज, तो हमारे पता लग गया तीन ऑपरेटर आज हमने करे हैं इस वीडियो के अंदर। हमने तीन ऑपरेटर कर दिए, जैसे नैंड, सॉरी एंड, और एंड नॉट, एंड और एंड नॉट, ओके। आई होप कि आपको क्लियर हो जाएगा टॉपिक। स्टिल अगर आपको कोई इश्यू आता है फिर भी आप मुझे डिस्कस कर सकते हैं। एंड I hope that all of you have subscribed the channel. If you have still not subscribed the channel, please subscribe it. Thanks a lot. Thank you. Goodbye. Have a nice day.